کل 9 مئی کو پورے پاکستان میں یوم سیاہ منایا گیا۔ نہ تو ان لوگوں کو فوج کے ساتھ محبت ہے، نہ ان لوگوں کو وطن کے ساتھ کوئی سروکار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 مئی 2024 کل 9 مئی کو پورے پاکستان میں یوم سیاہ منایا گیا۔ یوم سیاہ منانے والی حکومت بھی تھی، تحریک انصاف بھی تھی، ہر کسی نے اپنے اپنے طور پر یوم سیاہ منایا، یہ دن منایا۔ آج کی حکومت شہباز شریف صاحب اس کے انچارج ہیں، پہلے بھی 16 ماہ تک وہ پاکستان میں پی ڈی ایم کی حکومت کے سربراہ رہے۔ انہوں نے بھی پوری کابینہ کا اجلاس بلا لیا۔ پورے ملک میں بہت زیادہ ریلیاں ہوئیں عمران خان کے خلاف، تحریک انصاف کے خلاف، جن کو قرار دیا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے 9 مئی 2023 کو جو کچھ پاکستان میں ہوا، ایسا پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اور پاکستان کی یہ تاریخ اتنی سیاہ تاریخ ہو گئی ہے کہ فوجی تنصیبات پر صرف ایک بندے کی گرفتاری پر حملے کیے گئے، توڑ پھوڑ کی گئی، جلاؤ کیا گیا، گھیراؤ کیا گیا، شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا گیا، اس کی تضحیک کی گئی۔ یہ سارا کچھ کل کی ریلیوں میں ہوا۔ کل 9 مئی کا ماتم آج 10 مئی تک بھی جاری ہے، ہو سکتا ہے کہ آئندہ بھی 1-2 روز تک جاری رہے۔ بہت سی تنظیموں کی طرف سے فوج کے ساز یا قیادتی کے لیے مظاہرے کیے گئے، یہاں پہ یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ حکومت اور اسمبلیوں میں بھی قراردادیں پیش کی گئیں، پاس کی گئیں۔ اسی حوالے سے عمران خان کی تحریک انصاف کی شدید مذمت کی گئی۔ یہاں پہ یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، وہیں پہ تحریک انصاف کی طرف سے بھی اپنی موجودگی کا اظہار کیا گیا۔ پشاور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں چھوٹی موٹی ریلیاں ہوئیں، کیونکہ تحریک انصاف کو کھلی چھٹی نہیں تھی ریلیاں نکالنے کی۔ تاہم جتنا بھی ان سے ہو سکا انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا کہ 9 مئی جس طرح سے ہوا اس کی تحقیقات کرائی جائے، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ آپ کے ہم سامنے رکھتے ہیں کہ حکومت کس طرح سے دوہری تہری ہوتی جا رہی تھی، کس لیے؟ صرف اور صرف عمران خان سے نفرت کی خاطر۔ نہ تو ان لوگوں کو فوج کے ساتھ محبت ہے، نہ ان لوگوں کو وطن کے ساتھ کوئی سروکار ہے، ان کو ذاتی مفاد سے تعلق ہے۔ اسی وجہ سے یہ عمران خان کی نفرت میں اور کسی کی خوشامد میں باہر نکلے۔ شہباز شریف صاحب نے تو پوری کابینہ بٹھا لی جس میں وہ اس طرح سے ریئیکٹ کر رہے تھے۔ باقی جن لوگوں کی طرف سے احتجاج کیا گیا، یوم سیاہ منایا گیا کہ تحریک انصاف نے اس طرح کر دیا، تحریک انصاف نے اس طرح کر دیا، تحریک انصاف نے پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچایا، پاکستان کی دفاعی تنصیبات کو تباہ کیا، برباد کیا۔ یہ سارے لوگ اپنی زبان سے ایسی باتیں کر رہے تھے، لیکن ان کے دل میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہے۔ لیکن یہ سارا کچھ عمران خان سے نفرت اور کسی کی خوشامد میں کیا جا رہا تھا۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں جیسے ایک امیر آدمی ہے، وہ کسی کے ساتھ تھوڑا سا جھگڑتا ہے تو اس کا غریب رشتہ دار آگے آتا ہے، وہ اس سے امیر آدمی سے بھی بڑھ چڑھ کر ایسی باتیں کرتا ہے، دوسرا کا گریبان پکڑ لیتا ہے، اس کے ساتھ دھینگا مشتی شروع کر دیتا ہے۔ یہی آج کی ہماری حکومت کا بھی وتیرہ ہے۔ آج سے نہیں بلکہ جب سے عمران خان اقتدار میں آئے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کی حکومت آئی ہے، عمران خان کو گرانا تھا اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی، اور کل تو پھر شہباز شریف صاحب نے، ان کی حکومت نے کمال کر دیا۔ لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی طرف سے اس موقع پر کیا کہا گیا۔ وہ لاہور آئے تھے، گیریزن افسر سے ان کی ملاقات ہوئی، وہاں پہ انہوں نے جو گفتگو کی وہ آج کے اخبارات نے رپورٹ کیا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کیا کہا، اور اس کے بعد پھر غریب رشتہ دار کس طرح سے سامنے آتا ہے، شہباز شریف اور ان کی حکومت سامنے آتی ہے، وہ بعد میں بتائیں گے۔ پہلے ذرا ملاحظہ کیجئے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے کیا کہا گیا۔ معصوم بننے والے اصل ذمہ دار کو حساب دینا پڑے گا۔ 9 مئی کو ورغلائے لوگوں کو سپریم کورٹ کے حکم پر پہلے ہی شک کا فائدہ دیا جا چکا ہے۔ ایسی ذہنیت کے منصوبہ سازوں، کرداروں کے ساتھ کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے، نہ ڈیل ہو سکتی ہے۔ سانحہ 9 مئی میں ملوث عناصر اب ڈیجیٹل دہشت گردی کے ذریعے مسلح افواج پاکستانی عوام کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ قوم کی حمایت سے عزائم کو ناکام بنا دیا جائے گا۔ یہ تو آپ کے سامنے رکھا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی طرف سے جو کچھ کہا گیا 9 مئی کے حوالے سے، تو آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی ایک بیان جاری کیا گیا ہے۔ اس میں آئی ایس پی آر کی طرف سے کہا گیا ہے مقصد ملک میں خود ساختہ تنگ نظر انقلاب لانے کی ناکام کوشش تھی۔ اب آ جائیں کہ اس پر کس طرح سے امیر کا غریب رشتہ دار لوٹ پوٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب کی طرف سے کابینہ کا اجلاس بلایا گیا
जिस में उन्होंने किस तरह से तहरीक इंसाफ को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया, किस तरह से वो मुनाफिकत से मातम कर रहे थे। इस सारे मामले का 9 मई 2023 का मुलाहजा कीजिए शहबाज शरीफ साहब की काबीना क्या कहती है। वो क्या कहते हैं, रियासत और अफवाज आर्मी चीफ के खिलाफ ये बगावत थी। ये काबीना की तरफ से कहा जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि जो कुछ 9 मई 2023 को हुआ ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ और आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ एक बगावत थी। ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, जिनको कहते हैं कि ये मुफाहमत के शाहकार हैं। मज़ीद वो फरमाते हैं 9 मई करने वालों को ऐसी सज़ा मिलेगी कि वो ताहयात याद रखेंगे, वो भी याद रखेंगे और दुनिया भी याद रखेगी। इनको ऐसी सज़ा दी जाएगी जो रहती दुनिया तक याद रहेगी। ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया। यहीं पे उन्होंने बस नहीं किया, इसके आगे भी वो कहते हैं शुक्र है साजिश दम तोड़ गई, शोहदा की यादगारों पर खौफनाक हमले हुए। शहबाज शरीफ साहब ने यह फरमाया। काबीना का खसूसी इजलास 9 मई वाक़यात में PTI के बराह रास्त मुलव्वस होने की रिपोर्ट भी काबीना में पेश की गई। 1 साल गुजरने के बावजूद 9 मई के मुजरमों को सजा न मिली। 190 मिलियन पाउंड खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी बेचने, फॉरेन फंडिंग का नोटिस लिया जाता तो शायद हमले न होते। शोहदा कौम के हीरोज पुरसा के दरमियान होना मेरे लिए बाइस फ़ख्र, इत्मीनान रखें, कानून के मुताबिक फैसले होंगे। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। ये आपके सामने हमने 2 मौके पर शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू पेश की गई। एक तो उन्होंने काबीना का इजलास बुलाया जिसमें उन्होंने यह सारा कुछ कहा। एक तकरीब के दौरान भी उन्होंने यह सारा कुछ कहा। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यह हुकूमत किसकी खुशामद कर रही है और इमरान खान की नफ़रत में ये सारा कुछ हो। इमरान खान की नफ़रत की बायस ही ये लोग 14 माह 16 माह पहले हुकूमत में रहे और अब भी इसी वजह से इनको हुकूमत में लाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि अपना हक अदा करें। और उधर मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो भी उस मौके पर 9 मई 2024 को वहीं पे गई जहाँ पे कोर कमांडर हाउस को आग लगाई गई थी। उसके साथ ये जिना गैलरी बनाई गई है वहाँ पे मरियम नवाज शरीफ साहिबा गई हैं। उन्होंने वहाँ पे जाकर क्या कहा वो भी ज़रा मुलाहिजा कीजिए। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो कल तक अपने जलसों में ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है नारे लगवाया करती थी, इनकी मौजूदगी में, इनके जलसे में, इनके इज्तिमा में ये नारे लगे और पूरी दुनिया ने ये मुलाहिजा की है। वीडियो वायरल हुई थी। आज वो उसी बारगाह में पेश हुई हैं। वो वहाँ पे जाके क्या फरमाती हैं, हमला आवरों को दहशत गर्दों से तरबियत दिलवाई गई। मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं पहले तो पाक फौज की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और वही मौक़िफ़ अमूमी तौर पर अवाम का भी है और वही मौक़िफ़ हुकूमतों का भी है, जिसमें ये कहा गया था कि वहाँ पे लोगों को भिजवाया गया, वहाँ पे लोगों को ले जाया गया और उनको अंगेख्ता किया गया आग लगाने के लिए, तोड़ फोड़ करने के लिए। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से एक नया कट्टा खोला गया है। वो फरमाती हैं कि हमला आवरों को पहले दहशत गर्दी की तरबियत दिलाई गई थी। अब इस हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो दहशत गर्दी के कैंप वो भी सामने ले आएँ, उनको भी दरियाफ्त किया जाए, वो भी पकड़े जाएं, उनको जो भी चलाने वाले लोग हैं उनका भी एहतसाब किया जाए। मरियम नवाज शरीफ साहबा को बहुत कुछ बताना पड़ेगा। देखते हैं बताती हैं या नहीं बताती, लेकिन उनके पास मालूमात माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा होंगी। जो उन्होंने कहा है कि जो ये कहती हैं कि इनको बाकायदा दहशत गर्दी की तरबियत दी गई थी। जिन लोगों ने कोर कमांडर हाउस पर हमला किया या जो भी फौजी तनसीबात तक पहुँचे उनको बाकायदा दहशत गर्दी की तरबियत, ये कोई और नहीं कह रहा बल्कि ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा कह रही हैं। मजीद वो कहती हैं जिनाह हाउस में बिखरी खिड़कियां दीवारों पर शर पसंदों की बादमाली की कालक देख कर दुख हुआ। 9 मई के दहशत गर्दों के सीने में दिल नहीं, 3-4 माह पुराने की गई, सजा क्यों नहीं मिलती, जमानतें क्यों दी जाती हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा सवाल उठा रही हैं कि इन लोगों को ज़मानतें क्यों दे दी जाती हैं, इन लोगों को सज़ा क्यों नहीं मिलती। यही कोई शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं, बाकी लोग भी कहते हैं कि इनको सज़ाएं क्यों नहीं मिलती। सज़ाएं किसी ने दिलवानी है। 9 मई कब हुआ, निगरान हुकूमत थी, मरकज़ में भी पंजाब में भी। और ये निगरान हुकूमत कैसे आई थी, किसने बनाई थी, कौन लेके आया था, उसने ये जिम्मेदारी अदा क्यों नहीं की। और फिर आपकी तरफ से भी अब तक क्यों कोई किरदार अदा नहीं किया गया। अगर इन लोगों को सजाएं नहीं दी जा सकी उसमें जिम्मेदार आप भी हैं, निगरान हुकूमत भी। और शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में जो काबीना का इजलास हुआ उसमें मजीद माशाल्लाह से क्या कहा गया वो भी ज़रा मुलाहिजा कीजिए। निगरान हुकूमत की रिपोर्ट वहाँ पर रखी गई, उस पर काबीना क्या कहती है। 9 मई
इमरान खान का भरपूर किरदार, 34 मास्टर माइंड, 52 मनसूबा साज, 185 अमल दरामद करने वाले थे। निगरान हुकूमत की रिपोर्ट काबीना में पेश। साने 9 मई फौज पर दबाव के लिए तशद्दुद को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की हिकमत अमली का हिस्सा था। मुलव्वस अफराद को फौरी इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ये निगरान हुकूमत की रिपोर्ट है जो शहबाज शरीफ की काबीना में पेश की गई। 1 साल बाद भी मुजरमों को सजा न मिल सकी। शहबाज शरीफ, सब्र को लामहदूद ना समझा जाए, मनसूबा साज और सहूलतकारों को कटहरे में लाया जाएगा। ये पहले हम बात कर चुके हैं। जंग अखबार की तरफ से आर्मी चीफ के बयान को भी इसी का हिस्सा बनाया है। इस दिन रियासत और फौज के खिलाफ बगावत हुई, कोई माफ़ी नहीं। वजीर आज़म ने यह कहा है, समझौता होगा ना डील होगी, असल जिम्मेदारों को हिसाब देना पड़ेगा। ये आर्मी चीफ की तरफ से हमने एक बार फिर दोहरा दिया। ये जंग की खबर थी। अब थोड़े से दीगर लोगों के बयानात पर भी नजर डालते हैं कि वो क्या कहते हैं। 9 मई मुलव्वस अनासर को सजा मिलनी चाहिए, ये मोहसिन नकवी साहब बोले और पतली गली से निकल गए। 9 मई को एक सियासी जमात के वर्गलाने पर शर पसंद अनासर रियासत पर चढ़ दौड़े। हमजा शहबाज शरीफ साहब को भी ख्याल आ गया है कि अब्बा जी के नक्शे कदम पर चलना है। 9 मई वाक़यात, पंजाब सिंध बलोचिस्तान असम्बलियों में मजम्मती करारदादे मंजूर, ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। ये भी अमीर के गरीब रिश्तेदार हैं जिनकी तरफ से ये सारा कुछ कहा गया। PTI के खिलाफ 9 मई के सबूत मौजूद, कोई अबहाम बाकी नहीं। राना सनाउल्लाह साहब ये फरमा रहे हैं। अली अमीन गन्नापुर की तरफ से कहा गया है कि आम माफ़ी का ऐलान करें, अगर हमारी कोई गलती साबित हो जाती है तो फिर हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले गलती साबित की जाए। और इसके अलावा बैरिस्टर गौहर की तरफ से कहा गया है, बार बार कहते हैं सीज़ फायर करें, आगे बढ़ें। पार्टी के साथ अनगिनत ज़्यादतियाँ, मकबूल जमात को इंतशारी टोला कहना बदकिस्मती है। जहाँ पे हम ये भी बता दें कि सदर आरिफ अलवी अपनी सदारत से सुबकदोश हो चुके हैं, साबिक सदर हो चुके हैं। वो भी तहरीक इंसाफ की मदद के लिए आ गए हैं। उन्होंने भी अपनी सरगर्मियाँ इमरान खान के हक़ में, इमरान खान की हमायत में शुरू कर दी हैं। और मैं समझता हूँ कि आरिफ अलवी की तरफ से इमरान खान के साथ वफा का हक़ अदा कर दिया गया है। वो घर से निकले, उनकी तरफ से लाहौर में कैद यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और दीगर के साथ जेल में जाकर मुलाकात की गई। उन्होंने इमरान खान से भी मुलाकात की। उनकी तरफ से इसी हवाले से कहा गया है, 9 मई वाक़यात पर सारी PTI दबा दी गई, क्या मजलूम माफ़ी मांगे? ये आरिफ अलवी ने कहा है। नाज़रीन, इस विला का हम इख्तिताम करते हैं इसके साथ के इस हवाले से पूरा इंसाफ होगा। इससे पहले कि कुदरत का इंसाफ हो, इस हुकूमत की तरफ से या आज जो अदारे बड़ी ताकत में हैं उनकी तरफ से इंसाफ के तराजू बराबर रख के इस मामले को देखने की ज़रूरत है। किसी की खुशामद में अदारे जाएं, ना किसी की नफरत को मद्देनजर रखें। जो कुछ 9 मई को हुआ बिल्कुल वो पाकिस्तान के साथ सरीहन जुल्म था, दुश्मनी थी। ऐसा कोई दुश्मन भी अपने दुश्मन के साथ नहीं करता। अगर करता है तो सिर्फ एक बदतरीन दुश्मन ही अपने दुश्मन के साथ करता है। आम दुश्मन ऐसा नहीं करता कि आप पाक फौज की तनसीबात को जला दें, घेराव करें, तोड़ फोड़ करें, शोहदा की तज़हीक करें। लेकिन ऐसा कोई भी पाकिस्तानी मुहिब वतन पाकिस्तानी कर ही नहीं सकता। लेकिन बहुत से सवालात हैं कि कोर कमांडर हाउस तक जाने के लिए कैंट के चारों तरफ फ़ौज लगी होती है। उस दिन ये लोग कहाँ पे थे? सिक्योरिटी क्यों हटा दी गई थी? और फिर पुलिस ने अपना किरदार अदा क्यों नहीं किया? कहते हैं कि कोई कत्ल गारत हो जाती, कोई लोग मर जाते तो लोग ज़्यादा एहतजाज करते। 25 लोग तो कहते हैं उस दिन मर गए थे। वो कहाँ पे मरे थे? ऐसी तनसीबात पर नहीं, बल्कि आम मुजाहरे करते हुए वो मारे गए थे। पाक फौज की कोई भी तनसीब है उसकी तरफ तो किसी को आंख उठाकर देखने और उंगली उठाने की भी जुर्रत नहीं होनी चाहिए। ये लोग कैसे वहाँ तक पहुँच गए? पुलिस कहाँ थी? बाकी सिक्योरिटी कहाँ थी? ऐसी चीज़ों को लेकर इमरान खान कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बहरहाल इमरान खान के दलाइल में बहुत वज़न है, लेकिन इससे भी ज़्यादा वज़न पाक फौज के दलाइल में है। लेकिन इसके लिए फिर क्या होना चाहिए? एक कमीशन बना दिया जाए जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी इसमें मुलव्वस है तो 1 मिनट ना लगाया जाए इस पार्टी को कालअदम करार देने के लिए और इनकी क़यादतों को इबरतनाक सजा देने के लिए। लेकिन उसके लिए फिर इंसाफ के तराजू बराबर रखने की ज़रूरत है। ये किसने रखने हैं? ये आज पाक फौज ने रखने हैं जिसके साथ उस रोज़ जुल्म हुआ। ये इमरान खान की तहरीक इंसाफ की तरफ से जुल्म किया गया, जबर किया गया, तशद्दुद किया गया, या फिर उसकी आड़ में किसी और ने यह सारा कुछ किया जिसके आज ये लोग मज़े उड़ा रहे हैं, कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। 9 मई का मातम 10 मई को मनाया जा रहा है। सारा पाकिस्तान बाहर निकल आया, कोई इनके साथ, कोई उनके साथ,
کوئی عمران خان کے ساتھ، کوئی آج کی حکومت کے ساتھ، اور بہت سے لوگ اداروں کے ساتھ، لیکن سارے کے سارے جو عمران خان کے ساتھ تھے، جو حکومت کے ساتھ تھے، جو اداروں کے ساتھ تھے، سارے کے سارے پاکستان کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔